السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ کیا مرکز میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت 2024 کے لوک سبھا انتخابات سے پہلے یکساں سول کوڈ کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ لینے جا رہی ہے؟ ذرائع کے مطابق مرکزی حکومت یکساں سول کوڈ پر کارروائی سے پہلے اتراکھنڈ میں تشکیل دی گئی کمیٹی کی رپورٹ کا انتظار کر رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق اتراکھنڈ کمیٹی کی رپورٹ اگلے 2 ماہ میں آنے کا امکان ہے۔ کمیٹی کی رپورٹ کی بنیاد پر اتراکھنڈ میں ایک ماڈل قانون تیار کیا جائے گا۔ یہی ماڈل قانون بی جے پی کی حکومت والی دیگر ریاستوں اور بعد میں پورے ملک میں لاگو کیا جا سکتا ہے۔ لا کمیشن بھی اس معاملے کو دیکھ رہا ہے۔ بی جے پی 2024 سے پہلے اپنے کھیل کھیلے گی، یکساں سول کوڈ کے معاملے پر آگے بڑھنے کی تیاری کر رہی ہے۔ گجرات میں بھی بی جے پی حکومت نے یکساں سول کوڈ کے لیے ایک کمیٹی بنانے کی بات کہی ہے۔ وہاں کابینہ نے منظوری دے دی ہے، لیکن ابھی تک تشکیل نہیں ہوئی ہے۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ ریاست میں یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے گا۔ اتراکھنڈ کی کمیٹی کی ڈرافٹ رپورٹ آنے کے بعد دیگر ریاستوں کو بھی اس کی بنیاد پر قانون بنانے میں مدد کی جائے گی۔ اس خبرنامے کو ایم ایس ایجوکیشن کی جانب سے اسپانسر کیا جا رہا ہے۔ Just after 10th, I joined MS, started my JEE preparation. During the phase of the preparation, I developed interest in mathematics, which is why I started to look about more opportunities in the field of maths rather than just engineering itself. So I wrote the ISI test and alhamdulillah, I got selected. کرناٹک کے ہبلی دھارواڑ مغربی بی جے پی کے ایم ایل اے اروند بیلاد نے این ڈی ٹی وی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ اسمبلی انتخابات سے چند ہفتے قبل سابق وزیر اعلیٰ جگدیش شیٹر کے بی جے پی سے نکلنے سے انتخابات میں پارٹی کی کارکردگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لنگایت رائے دہندوں کی بی جے پی کی حمایت پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ انہوں نے اس بات کو بھی مسترد کر دیا کہ بی جے پی کو کسی بھی مخالف اقتدار کا سامنا کرنا پڑے گا، خاص طور پر جب وزیر اعظم نریندر مودی انتخابی مہم چلا رہے ہوں۔ گجرات کی سابق وزیر اور بی جے پی لیڈر مایا کوڈنانی اور بجرنگ دل کے بابو بجرنگی کے بشمول 60 ملزمین کو 2002 کے گجرات فسادات سے متعلق نروڈاگام کیس میں بری کر دیا گیا۔ احمد آباد کی خصوصی عدالت نے اس کیس میں فیصلہ سنایا، جس کا تعلق احمد آباد کے نروڈاگام میں 11 مسلمانوں کی ہلاکت سے ہے، جن کے گھروں کو آگ لگا دی گئی تھی۔ متاثرین کے وکیل شمشاد پٹھان نے بتایا کہ وہ گجرات ہائی کورٹ میں اس برات کو چیلنج کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ متاثرین کے خلاف نہیں بلکہ ایس آئی ٹی کے خلاف ہے، جس نے مناسب کام کیا اور 86 ملزمین کے خلاف چارج شیٹ پیش کی۔ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے خلاف ہے۔ چاہے 20 سال گزر جائیں، متاثرین کو انصاف ملے گا۔ وکیل نے کہا کہ وہ نہیں جانتے کہ کس بنیاد پر خصوصی عدالت نے تمام ملزمین کو بری کیا ہے۔ وہ حکم نامے کی نقل کا انتظار کر رہے ہیں۔ پٹھان نے کہا کہ ہمارے پاس ملزمین کے خلاف تمام ثبوت ہیں۔ فورنسک سائنس لیبارٹری رپورٹ سے لے کر سیل فون ٹاور لوکیشن اور عینی شاہدین تک سب ثبوت موجود ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ 2017 میں مایا کوڈنانی کے لیے دفاع کے گواہ کی حیثیت سے عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ وہ 2002 میں اس وقت کے چیف منسٹر نریندر مودی کی زیر قیادت گجرات حکومت میں وزیر تھی، جب 2002 کے فرقے وارانہ فسادات ہوئے تھے۔ ہندوستان کے سیکولر افراد کے ذہن میں یہ بات گشت کر رہی ہے کہ کیا نروڈاگام کیس کے تمام ملزمین بری ہو گئے ہیں، تو پھر وہ 11 مسلمانوں کی ہلاکت کے ذمہ دار کون ہیں؟ کیا وہ خود بخود ہلاک ہو گئے تھے؟ کیا ان کے گھروں کو خود بخود آگ لگ گئی تھی؟ ناظرین، ان تمام واقعات پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور واقف کروائیے گا۔ سابق رکن پارلیمنٹ عتیق احمد اور اشرف کے قتل کی تحقیقات کے لیے قائم کی گئی 3 رکنی عدالتی کمیشن نے جمعرات کو کولون ہسپتال پہنچ کر جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا، عدالتی کمیشن کے چیئرمین ریٹائرڈ جسٹس اے کے ترپاٹھی اور ممبران سومیش کمار سنگھ اور ریٹائرڈ جسٹس بریجیش کمار نے جائے وقوع کا معائنہ کیا۔ اس دوران پورے علاقے کو حفاظتی گھیرے میں لے لیا گیا تھا۔ عدالتی کمیشن کے اراکین نے پولیس افسران سے قتل کے مقام پر موجود پولیس اہلکاروں کی تعداد کے بارے میں سوالات پوچھے۔ درجنہ جائے وقوع کا نقشہ بھی تیار کیا گیا۔ قبل ازیں اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم نے بھی کولون ہسپتال پہنچے۔ ایس آئی ٹی کے ساتھ فورنسک ماہرین کی ٹیم بھی موقع پر پہنچی تھی۔ درجنہ حملہ آور لولیش تیواری، سنی اور ارون موریا اپنے موقف پر قائم ہے کہ انہوں نے قتل صرف انڈر ورلڈ میں اپنا نام کمانے کے لیے کیا ہے۔ تفتیشی ایجنسیوں کے سامنے اب سب سے اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی کہ یہ قتل واقعی ان تینوں نے محض اپنے دم پر کیا ہے یا کسی اور نے ان سے یہ کام کروایا ہے۔ ہندوستان میں کورونا کے بڑھتے معاملات کے درمیان مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کورونا پازیٹیو پائے گئے ہیں۔ انہیں فی الحال گھر میں ہی کوارنٹائن کیا گیا ہے۔ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے ان کی جانچ کی ہے اور آئندہ کچھ دنوں کے لیے آرام کا مشورہ دیا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ راجناتھ سنگھ میں کورونا کی ہلکی علامتیں دیکھنے کو مل رہی ہے، جس کے پیش نظر انہیں گھر ہی میں کوارنٹائن رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔
वज़ीर के राजनाथ सिंह को जुमेरात को ही फिजाइया की कमांडर कॉन्फ्रेंस में जाना था, लेकिन कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इन्हें अपना प्रोग्राम रद्द करना पड़ा। साबिक रुकने पार्लियामेंट अतीक अहमद और इनके भाई मोहम्मद अशरफ की पुलिस हिरासत में कत्ल पर मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे अब बाज़ न्यूज़ चैनल्स भी दिखा रहे हैं और इसमें मौलाना बयान की निस्बत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से की जा रही है और कहा जा रहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सीनियर और मजलिस आमिला के अहम रुकन ने अतीक अहमद और मोहम्मद अशरफ को शहीद कहा और इनके लिए दुआए मगफिरत की। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मौज़ा पर्सनल लॉ और आइली मसाइल हैं, नेज़ मुसलमानों के इंतहाई अहम दीनी मामलात तक ही बोर्ड ने खुद को महदूद कर रखा है और बोर्ड अपने दस्तूर की रोशनी में ही काम करता है। मौलाना सज्जाद साहब के इस बयान को इनका ज़ाती बयान समझा जाता है और किसी भी न्यूज़ चैनल को बगैर तहक़ीक़ के बोर्ड की तरफ मंसूब नहीं करना चाहिए। वैसे भी ये बोर्ड का मौजू नहीं है, लिहाजा इसको बोर्ड से वाबस्ता ना किया जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स ने शाइस्ता परवीन महलूक रुकने पार्लियामेंट अतीक अहमद की बेवा और ब्रादर निस्बती को गिरफ्तार करने की कोशिशों में तेजी पैदा कर दी है। अतीक को 15 अप्रैल के दिन गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। पुलिस टीमें प्रयागराज के देहातों में और पड़ोसी कौशंबी इलाके में इम्कानी मुकामात पर इनको तलाश कर रही है, जिनमें इनके रिश्तेदारों के मकानात हैं। पुलिस अहदेदारों को यकीन है कि अतीक और इनके छोटे भाई अशरफ का कत्ल और अतीक के फर्जंद असद अहमद की मौत जो STF ने झांसी में 13 अप्रैल को इनकाउंटर में की थी, शाइस्ता हुनूस वाहिद खातून ने जो 24 फरवरी को कानून उमेश पाल और इनके 2 पुलिस गार्ड्स के कत्ल के मंसूबे पर रोशनी डाल सकते हैं, जबकि एक मुलजिम उमेश पाल कत्ल केस में वो मुलविस हैं। शाइस्ता 24 फरवरी से मफरूर है जब कत्ल हुआ था। इनके सर पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया है। शाइस्ता ने अपने फर्जंद की तदफीन के मौके पर शिरकत नहीं की थी, जो 15 अप्रैल को हुई थी। अतीक अहमद और इनके भाई अशरफ की इलाहाबाद में पुलिस कस्टडी के दौरान कत्ल किए जाने की मुखालिफत में इत्तेहाद मिल्लत के सरबराह और नबीर आला मौलाना तौकीर रजा खान ने इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में एहतजाजी मुजाहरा करने का ऐलान किया था। तकरीब के लिए इंतजामिया ने इजाज़त नहीं दी, बावजूद इसके मौलाना जिद पर अड़े रहे। माहौल बिगड़ने ना पाए, इसलिए पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी लगा दी। इसकी वजह से मौलाना तौकीर रजा वहां नहीं जा सके और भीड़ भी नहीं पहुंच सकी। इस दौरान नज़रबंद रहे मौलाना तौकीर रजा ने मीडिया को खिताब किया। मौलाना ने कहा, जिस तरह पुलिस ने अतीक अहमद और अशरफ के कातिलों को गोद लेकर बचाया, इससे साफ जाहिर है कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के इशारे पर इनका कत्ल किया गया। वज़ीर आला ने असेंबली में कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा, तो वही कर दिखाया। मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा कि वो जो 3 शूटर थे वो सिर्फ एक्टर थे, जबकि स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लॉर्ड गौतम बुद्ध की तालीमात को इंसानियत का अकीदा करार देते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि दुनिया को इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम, दहशतगर्दी और मजहबी जुनूनियत और मौसमियाती तब्दीली जैसे आलमी चैलेंजों से बचाने के लिए बुद्ध के रास्ते पर चलना होगा। मोदी ने यह बात अपने 2 रोज़ा आलमी बुद्ध समिट के इफ्तिताई इजलास से खिताब करते हुए कही। प्रोग्राम में मरकज़ी वज़ीर क़ानून व इंसाफ किरण रिजिजू, सयाहत व सकाफ़त के वज़ीर जी किशन रेड्डी, सकाफ़त और पार्लिमानी उमूर के वज़ीर मुमलिकत अर्जुन राम मेघवाल, वज़ीर मुमलिकत बराए सकाफ़त व उमूर ख़ारजा मीनाक्षी लेखी, बैनुल-अक़वामी बुद्धिस्ट फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल हिंदुस्तान और बैरून मुल्क से आए बुद्ध मत के बख्शों ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस सदी का सबसे मुश्किल वक्त है। आज एक तरफ 2 ममालिक महीनों से हालत जंग में है, तो दूसरी तरफ दुनिया भी मुआशी अदम इस्तेहकाम से गुजर रही है। दहशतगर्दी और मजहबी जुनूनियत जैसे खतरात इंसानियत की रूह पर हमलावर है। पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी हिंदुस्तान में अगले माह मुनक़्क़िद शुदनी शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ बिलुच ने मीडिया ब्रीफिंग में ये ऐलान किया। कॉन्फ्रेंस में शख्सी शिरकत से मुतालिक कई हफ्तों से जारी क़यास आरइयों को ख़त्म करते हुए उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी हिंदुस्तान के गोवा में 4 और 5 मई 2023 को मुनक़्क़िद शुदनी SCO के वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने सूडान में ईद उल फितर के मौके पर कम से कम 3 दिन की जंग बंदी पर जोर दिया। एंटोनियो गुटेरेस ने बाज़ अरब ममालिक में शव्वाल का चांद नजर आने के बाद कहा, हम मुस्लिम कैलेंडर में एक बहुत अहम लम्हा गुजार रहे हैं। मेरे ख्याल में जंग बंदी के लिए ये दुरुस्त वक्त है। हम फरीकीन के साथ राब्ते में समझते हैं कि जंग बंदी मुमकिन है। आलमी इदारे के सरबराह ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस तातुल से जंगज़दा इलाक़े में फंसे शहरी महफूज मुकामात की तरफ जा सकेंगे और इन्हें तिब्बी इलाज, खुराक और दीगर ज़रूरी सामान की तलाश का मौका मिलेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईद के मौके पर जंगबंदी लड़ाई से राहत फराहम करने और मुस्तकिल जंगबंदी की राह हमवार करने की जानिब पहला कदम होना चाहिए।
रियासत तेलंगाना के दारुलकुमत शहर हैदराबाद में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन का माहाना इजलास बजीमन रोयत हिलाल माह शवाल अल मुकर्रम आज शाम 6 बजे बमुकाम हुसैनी बिल्डिंग मौजम जही मार्केट जेर निगरानी मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया जामे निज़ामिया व मुअज़्ज़िज़ रुकन सदर मजलिस उलमाए दक्कन मुनक़्क़िद हो रहा है। मुअज़्ज़िज़ अरकान कमेटी से शिरकत की ख्वाहिश की गई। अवाम से ख्वाहिश की गई है कि जिस किसी को भी आज चांद नज़र आ जाए वो फ़ोन नंबर 24603597 पर 8 बजे तक और 8 बजे के बाद 24576832 नंबरात पर मोबाइल 9391964951 पर रोयत की सूरत में इत्तला दें ताकि शरई शहादत की तकमील के बाद ऐलान किया जा सके। रोयत हिलाल कमेटी ने माकूल इंतजाम किए हैं ताकि हुसूल इत्तलात में सहूलत हो सके। शहर हैदराबाद में वाक़ ईदगाहों में नमाज ईद के इंतजामात का रियासती वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने मजलिसी अरकान असम्बली मोहम्मद मौज़म खान और कौसर मुहिउद्दीन के हमरा जायजा लिया और नमाज ईद के सिलसिले में मुख्तलिफ महकमाजात के अहदेदारों को कामों की अंजामदही की हिदायत जारी की। ईदगाह मीर आलम पर तकरीबन 41 लाख रुपए के तरक्याती काम मंजूर किए गए। इनमें ईदगाह के हुदूद में मोरम अंदाजी ज़मीन को मुस्तक करने का काम शुरू कर दिया गया और ईदगाह में जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन की लाइन खस्ता हो चुकी थी इसकी रीमॉडलिंग के लिए भी मंजूरी दी गई। ईदगाह के अंदरूनी हिस्से में इंटरलॉकिंग टाइल्स के कामों की मंजूरी दी गई। ताहाल इस सिलसिले में अभी कोई तखमीना नहीं पेश किया गया। इस काम को ईद उल अजहा से कबल मुकम्मिल करने की हिदायत दी गई। ईदगाह के रास्तों पर कचरे और मलबे की निकासी, खुसूसी सफाई, सड़कों पर जो गड्ढे पड़ गए हैं इसके पैच वर्क के कामों को अंजाम देने की हिदायत दी गई। महकमा पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक के कामों की जिम्मेदारी दी गई है। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने तेलंगाना के 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को तालीमी साल 2023-24 से क्लासेस के आगाज़ की इजाज़त दी है। रियासती वजीर सेहत टी हरीश राव ने गुज़िश्ता शाम ट्वीट करते हुए कहा कि निर्मल, करीमनगर और सरसला मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी का अमल आखिरी मरहले में पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि एनएमसी ने जारिया साल से 9 के मुंजमला 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में तालीमी सरगर्मियों की शुरुआत की इजाज़त दे दी है। जिन 6 कॉलेजों को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है इनमें जनगांव, आसिफाबाद, कामारेड्डी, खम्मम, विकाराबाद और भोपालपल्ली के मेडिकल कॉलेजेस शामिल हैं, जबकि निर्मल, करीमनगर और सरसला मेडिकल कॉलेजेस की मंजूरी का अमल क़तई मरहले में दाखिल हो चुका है। तकरीबन 2 दहाइयों के बाद शहर हैदराबाद की सड़कों पर डबल डेकर बसें दोबारा दौड़ने के लिए तैयार हैं, मगर अब ये बसें इलेक्ट्रिक अवतार में रहेंगी। 6 डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसें अहम सयाहती मराकिज़ जैसे पुराने शहर, टैंकबैंड और फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में चलाने के लिए तैयार हैं। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 12 करोड़ 96 लाख रुपए के मसारिफ से इन बसों को खरीदा है। सेक्रेटरी महकमा बल्दी नज़्म व नस्र व शहरी तरक्यात अरविंद कुमार ने कहा कि सयाहत के नुक्ते नज़र से अहम रूट्स पर इन बसों को मुकम्मल तौर पर चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर का अहाता करने वाली अहम रूट्स के मशहूर मुकामात जैसे टैंकबैंड, बिरला मंदिर, असेंबली, सालारजंग म्यूजियम, चार मीनार, मक्का मस्जिद, किला गोलकुंडा, तारामती, बारादरी, गंडीपेट पार्क, दुर्गम चेरू, केबल ब्रिज, आईटी कॉरिडोर और फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में ये डबल डेकर बसें बहुत जल्द मुतारिफ कराई जाएंगी। ये बसें टैंकबैंड से मुख्तलिफ रोड्स पर रवाना होंगी और दोबारा इसी मुकाम पर वापस होंगी। 11,100 करोड़पतियों के साथ हैदराबाद इन शहरों में 10वें नंबर पर है, जहां पिछली दिहाई में करोड़पतियों की तादाद में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है। दुनिया के अमीर तरीन शहरों की फहरिस्त में हैदराबाद को मजमूई तौर पर 65वां मुकाम हासिल हुआ है। हैदराबाद में करोड़पतियों में 2012 से 2022 के दरमियान 10 सालों में 78% इजाफा हुआ है। 12,600 करोड़पतियों के साथ जो 88% इजाफा है, इसके साथ बेंगलुरु 6ठे नंबर पर है। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फर्म एंड पार्टनर्स की तरफ से दुनिया के अमीर तरीन शहरों की 2023 की फहरिस्त जारी की है। हैदराबाद हिंदुस्तान का 5वां अमीर तरीन शहर बनकर उभरा है। हैदराबाद को दुनिया के अमीर तरीन शहरों की फहरिस्त में मजमूई तौर पर 65वां मुकाम मिला है। भारत का मालियाती दारुलकुमत मुंबई और मुल्क के अमीर तरीन अफराद का मस्कन है, मुल्क का सबसे अमीर शहर है। तेलंगाना के नौ तामीर शुदा सेक्रेटरीट की सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है और इसकी जिम्मेदारी SPF को सौंप दी गई है। फिलवक्त तकरीबन 100 रुकनी SPF अमला इसकी निगरानी कर रहा है। सेक्रेटरीट के इफ्तिताह के बाद 650 से ज़्यादा SPF का दस्ता तैनात किया जाएगा। कई आला सतह के जायजा इजलास के बाद सेक्रेटरीट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी TSSP के हवाले करने का फैसला किया गया है। 350 से ज़ायद TSSP के अहलकार तकरीबन 300 आर्म रिजर्व और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस सिक्योरिटी की निगरानी करेंगे।